Beta, your test for the IBA round 2 is going to be conducted on 4th of July 2021. The dates have been announced. The test would primarily have two portions, or has two portions usually, English and Maths. For the BBA test or for any sort of undergrad test, we don't really have essay there in the test anymore. आपके अटैम्प्ट में ऐसे नहीं आएगा और आपके अटैम्प्ट में यूजुअली ऐसे नहीं होता है बेटा, और आएगा भी नहीं unless IB make some changes. Beta, English के portion में you'll either have 45 or 50 questions, and for that historically we are given 60 to 65 minutes. For the Maths portion, beta, we usually have 45 to 50 questions, and for that we usually have 70 to 80 minutes. Beta, please copy this. Please copy this as it is. But the next thing you should know about the test is the grading and how exactly the grading works. Let's just say if there are 10 marks or 10 questions, they're in the IBS test, and let's just say if you get 7 of them correct. So for every question that you get correct, beta, you'll be getting 4 points for that. So 7 into 4 would be 28. For every question that you get wrong, beta, there's no negative marking for that. So 3 into 0 would be 0. So your net score will be 28. So once again, beta, for every question that you get correct, you'll be getting 4 points for that. So 7 into 4 is 28. There's no negative marking in IBS test anymore, so 3 into 0 would be 0, so your net score will be 28, beta. Please copy this as well. With this beta, we'll be covering both like IB, CBM, Zabist. So once you prepare for IB, you end up preparing for CBM and Zabist as well. तो CBM Zabist के जो टेस्ट है ना, आप जिस तरह मैथ्स में होता है सबसेट एक चीज़ बोलते हैं, मतलब आप ऐसे समझ लें कि अगर आप IB के लिए प्रिपेयर करते हैं तो यू एंड अप प्रिपेयरिंग फॉर CBM Zabist ऑटोमेटिकली. अच्छा बेटा, नेक्स्ट थिंग यू शुड नो इज कि हाउ एग्जैक्टली द कट ऑफ वर्क्स, और कट ऑफ होता क्या है बेसिकली. IB के टेस्ट के लिए कट ऑफ का मतलब होता है बेटा पासिंग मार्क्स. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू प्रॉब्ली वुडंट नो. IB आपको हाइपोथेटिकली कहेगा कि आपको 60 मार्क्स चाहिए इंग्लिश में, मैथ्स में चाहिए 90, बट योर टोटल फॉर बोथ दीज सेक्शन शुड एटलीस्ट बी 205. मतलब यहाँ पे 60 + 90 का टोटल 150 नहीं लिखा होगा. IB आपको कहेगा कि 60 आप इंग्लिश में लेकर आ जाएँ at least to clear the English portion. Try getting a 90 in the mathematics section, but your total for both these sections should at least be 205. The point I'm making here is that your total for both these sections will definitely be greater than the sum of these two individual sections. को बात समझ में आ रही है मेरी क्या है बेटा? So let's just say there's a student, उसके मार्क्स आ गए 80 इंग्लिश में, तो उसका इंग्लिश का पोर्शन क्लियर हो जाएगा. लेट्स जस्ट से दिस पर्सन गेट्स 100 इन मैथ्स, तो उसका मैथ्स का पोर्शन क्लियर हो जाएगा, और 100 + 80 इज़ 180. नाउ दिस पर्सन isn't clearing the total cutoff for IBS test, and thereby he's failing the test by 25 marks, or he's 25 marks short of total marks, तो उसका टेस्ट क्लियर नहीं होगा. Likewise, another scenario बेटा, लेट्स जस्ट से कोई बच्चा है, उसके 100 मार्क्स आ गए इंग्लिश में, तो इंग्लिश का पोर्शन क्लियर हो रहा है. 100 आ गए मैथ्स में, तो मैथ्स का पोर्शन भी क्लियर हो रहा है. बट वंस अगेन दिस पर्सन इज फेलिंग द टोटल कट ऑफ बाय 5 मार्क्स, और नॉट मीटिंग द टोटल कट ऑफ बाय 5 मार्क्स, तो उसका टेस्ट क्लियर नहीं होगा. लाइकवाइज बेटा, लेट्स जस्ट से
कोई बच्चा है जो कि इंग्लिश के पोर्शन में बहुत अच्छा है, तो इंग्लिश में अगर उसके 140 आ गए तो इस ऑफ कोर्स क्लियरिंग द इंग्लिश पोर्शन। मैथ्स में 80 आ गए, चाहिए 90 थे, तो ही इज़ फेलिंग द मैथ्स पोर्शन बाय 10 मार्क्स। टोटल में 205 चाहिए थे, 220 आ गए, तो टोटल भी क्लियर हो रहा है, बट सिंस ही इज़ फेलिंग द मैथ्स पोर्शन सो देयरफॉर टेक्निकली इज़ फेलिंग द टेस्ट। तो आपको तीनों कट ऑफ्स जो हैं आपको वो इंडिविजुअली क्लियर करने हैं बेटा। अब ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि एक बच्चा हो जिसका मैथ्स में अच्छा हो, जो बच्चा उसके अगर आप देखें मैथ्स में 90 चाहिए थे, इस बच्चे के 160 आ गए। इंग्लिश में दिस किड नीडेड 60, तो इसके 52 आ गए, तो ही इज़ फेलिंग इट बाय 8 मार्क्स। टोटल में 205 चाहिए थे, इसके 212 आ गए, तो टोटल भी इसका पास हो गया। और ये भी याद रखिएगा कि योर वेरी गुड परफॉर्मेंस इन वन सेक्शन कांट मेक अप फॉर योर पुअर परफॉर्मेंस इन द अदर सेक्शन। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो वहाँ से आपको मैथ्स के मार्क्स मिल जाएंगे, आप मैथ्स में अच्छे हैं वहाँ से आपको इंग्लिश के मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। लाइकवाइज बेटा, अब देखें किस किस्म के बच्चे के पास होंगे। एक बच्चा है बेटा, उसके इंग्लिश में 60 चाहिए थे, उसके 80 आ गए, मैथ्स में 90 चाहिए थे, उसके 140 आ गए, टोटल 205 चाहिए था, उसके 220 आ गए, तो उसके बच्चे के तीनों पोर्शन, तीनों कटर्स जो है मीट हो रहे हैं, तो ये बच्चा पास कर जाएगा। ठीक है, प्लीज़ कॉपी दिस बेटा, कॉपी कर लें। अच्छा बेटा, ये जो कट ऑफ होता है आपका, ये फिक्स नहीं होता, दिस डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। देखें कट ऑफ जो ये मैंने जो लिखा था 60, 90, 205, ये फिक्स नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर अटैम्प्ट में IB कहेगा कि आप 60 इंग्लिश में ले आएँ, 90 मैथ्स में ले आएँ, टोटल के लिए आप 205 ले आएँ। ये वेरी करता रहता है और ये 2 फैक्टर्स के ऊपर लार्जली डिपेंड करता है। एक तो ये है कि आपके पास कितने बच्चे अपेयर हो रहे हैं, सो द मोर द कॉम्पिटिशन द हायर द कट ऑफ विल बी। और दूसरा ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ाम के ऊपर, या लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट के ऊपर। अगर आपका टेस्ट ज़्यादा मुश्किल है तो आपका कट ऑफ कम होगा, अगर टेस्ट आपका आसान है तो कट ऑफ आपका हाई होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ टेस्ट से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु आर अपेयरिंग एंड टेकिंग द टेस्ट से। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स पे ये लार्जली डिपेंड करता है। जो नेक्स्ट थिंग बेटा मैं आपको बता दूं, एक चीज़ है दैट विल बी यूजिंग मच लेटर व्हेन यू आर फिलिंग आउट द प्रोग्राम्स और द फॉर्म फॉर द IB। तो लेट्स जस्ट से आप अगर IB कह रहा है कि BBA में आपको 60 मार्क्स चाहिए फॉर द इंग्लिश पोर्शन, मैथ्स में यू नीड 90, बट योर टोटल फॉर बोथ दी सेक्शन शुड एटलीस्ट बी 205। लाइकवाइज IB कह रहा है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपको 60 मार्क्स चाहिए इंग्लिश के पोर्शन में, मैथ्स के लिए यू नीड 90, बट योर टोटल फॉर बोथ दिस सेक्शन शुड एटलीस्ट बी 200। लाइकवाइज IB कह रहा है सोशल साइंसेज में आपको 60, 90 और 195 चाहिए, BS इकनॉमिक्स में 60, 90, 195 चाहिए। अब एक बच्चा है, एक हाइपोथेटिकल किड हम ले लेते हैं, उसके इंग्लिश में आ गए 100, मैथ्स में आ गए 95, उसका टोटल हो गया 195। अब जब इस बच्चे ने फॉर्म को फिल आउट करा तो ही पुट BBA देयर हैज़ हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हैज़ हिज सेकंड प्रायोरिटी, सोशल साइंसेज एज हिज थर्ड प्रायोरिटी एंड BS इकनॉमिक्स एज हिज फोर्थ प्रायोरिटी। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, आप उसको प्रॉपर उसको चूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये 4 जो है ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस आपने इस ऑर्डर में चूज़ कर लिए। अब IB चेक करेगा कि वेदर यू मीटिंग द कट ऑफ फॉर BBA और नॉट। तो IB देखेगा कि BBA का कट ऑफ क्या है और आपके मार्क्स क्या हैं।
तो IB चेक करेगा कि आप BBA के लिए इंग्लिश का पोर्शन क्लियर करें, बिल्कुल आप कर रहे हैं। क्या आप मैथ्स का पोर्शन क्लियर करें, ऑफ कोर्स आप कर रहे हैं। 90 चाहिए थे आपके, 95 आ गए। फिर IB चेक करेगा वेदर यू मीटिंग द टोटल कट ऑफ और नॉट। नो यू नॉट, यू आर 10 मार्क्स शॉर्ट ऑफ द टोटल कट ऑफ। बेटा अभी आप एक मिनट समझ लें, फिर आई गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम कॉपी दिस। तो 195 मार्क्स इस बच्चे के आ गए, तो ही इज़ फेलिंग द टोटल कट ऑफ बाय 10 मार्क्स। तो IB फिर इसको BBA के लिए कंसिडर नहीं करेगा। फिर IB चेक करेगा कि इस बच्चे ने सेकंड प्रायोरिटी पे क्या रखा था। तो सेकंड प्रायोरिटी पे इस बच्चे ने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रखा हुआ है। लेट्स जस्ट से ऑफ कोर्स आप फर्स्ट प्रायोरिटी में वही रखते हैं जो कि आपको पढ़ना है। आप में कोई बच्चा होगा जिसको BBA करना होगा, कोई बच्चा होगा जिसको सोशल साइंसेस करना होगा, कोई बच्चा होगा जिसको BS इकोनॉमिक्स करना होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। ऑफ कोर्स इफ़ यू रियली वांट मी टू डिस्कस इट विद यू, मैं कर सकता हूँ, बट अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्या करना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कन्फ्यूज़ड हैं, आप you're technically inclining towards 2 different programs, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। आप ये तो आपके पास अभी चॉइस है और अभी आपके पास टाइम है, बिकॉज अभी आप करंटली फॉर्म्स फिल आउट नहीं करें, तो फॉर्म्स तो अभी मच लेटर आपके पास जो है स्टार्ट ऑफ जून में आएंगे। तो अभी तो आपके पास बहुत टाइम है ये चीज़ें डिसाइड करने का। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्योंकि जो है पहले से ही फॉर्म्स फिल आउट कर लेते हैं, तो ये गलती अगर आपसे हो जाए तो यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये एक तो ये कि गलती ना हो। अगर हो भी गई तो यू हैव एन ऑप्शन टू गेट द फॉर्म अनलॉक फ्रॉम IB। आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि भाई मुझे अपना फॉर्म अनलॉक कराना है, मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, लेकिन डेडलाइन से पहले। ये नहीं कि आप डेडलाइन के बाद बोलें जी मेरा फॉर्म अनलॉक कर दें, तो आप फिर उसको दोबारा एडिट करके दोबारा आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं। उसमें फ़ी दोबारा नहीं होती, खाली फॉर्म की सबमिशन दोबारा होती है। तो अब देखें, अगर इस बच्चे ने BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को एज ए सेकंड प्रायोरिटी रखा हुआ है, तो IB चेक करेगा क्या इसका कट ऑफ मीट हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ऑफकोर्स इंग्लिश का हो रहा है, मैथ्स का भी हो रहा है, लेकिन इस बच्चे का टोटल कट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का भी मीट नहीं हो रहा। तो IB चेक करेगा कि इसकी थर्ड प्रायोरिटी क्या है। इसकी थर्ड प्रायोरिटी थी BS सोशल साइंसेस। IB चेक करेगा सोशल साइंसेस का क्या कट ऑफ है। तो IB कहेगा देखिए इंग्लिश भी हो रहा है क्लियर, मैथ्स भी हो रहा है और टोटल कट ऑफ भी मीट हो रहा है। सो दिस पर्सन इज क्लियरिंग ऑल 3 कट ऑफ्स, एंड देन टेक्निकली IBA विल बी गिविंग दिस पर्सन एडमिशन देयर इन द सोशल साइंसेस प्रोग्राम। अगर डायरेक्ट एडमिशन ये है, IB में 2 किस्म के एडमिशन होते हैं, एक डायरेक्ट, एक थ्रू इंटरव्यू। विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट। तो इस तरीके से बेटा आपकी जो ये लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी है ना, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चे गलती से पहले से फॉर्म्स फिल आउट कर देते हैं और वो कहते हैं सिर्फ हमें तो सिर्फ BBA करना है, और वो बाकी फील्ड्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर IBA उस केस में ये करेगा कि देखेगा कि आपके BBA में एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो IBA कहेगा सॉरी, दैट्स इट एंड इट्स ओवर फॉर यू, क्योंकि आपने IBA को कोई और चॉइस दी नहीं थी जब IBA ने पूछा था। तो ये है बेटा, तो इससे बेटा प्लीज़ कॉपी कर लें। लाइकवाइज बेटा वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस किड। अब अगर आप इस बच्चे को देखें जिसके मार्क्स 108 आ गए और इसको अगर BBA में जाना था, तो लेट्स से ही इज क्लियरिंग द इंग्लिश पोर्शन, ही इज क्लियरिंग द मैथ्स पोर्शन, ही इज आल्सो मीटिंग द कट ऑफ, द टोटल कट ऑफ। तो इस बच्चे का अगर इसने BBA रखा हुआ था फर्स्ट प्रायोरिटी, तो BBA में एडमिशन हो जाएगा। दैट्स इट। अच्छा बेटा, आपके पास अभी जो आप 4 जुलाई को अब अपना टेस्ट देंगे, सो विल हैव 4 प्रोग्राम्स।
और you can choose 4 different programs. एक है BBA, एक है BS Accounting and Finance, एक है BS Social Sciences. उसके अंदर भी आपके पास further 4 majors होते हैं that you get decide much later when you are doing BS Social Sciences. तो उसमें आप ऐसा नहीं है कि आपको इनिशियली डिसाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास टाइम होता है, आपको पता होता है कि आपने किस चीज़ में मेजर करना है. अगर नहीं भी होता तो तब तक इतने कोर्सेज आप पढ़ चुके होते हैं कि आपको समझ आ चुकी होती है कि आपने किस चीज़ में फर्दर मेजर करना है. और एक 4th प्रोग्राम है दैट्स BS Economics. तो ये 4 प्रोग्राम्स हैं जो कि आप जिनका टेस्ट आपके पास 4 जुलाई को है. 25 जुलाई को IB का 2 और प्रोग्राम्स हैं जिनका टेस्ट होता है. इस मरतबा वो 25 जुलाई को है. उसमें से एक प्रोग्राम है BS Economics and Maths, एक है उसमें से प्रोग्राम BS Computer Sciences. BS Economics और BS Economics and Maths are 2 different programs. ठीक है बेटा. अच्छा बेटा, the next thing you should know about IBS test is कि there's no fixed pattern for IBS test and that's what makes this test really difficult. आप बाकी जितने टेस्ट देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात कर लें NED की टेस्ट की, वी नो व्हाट्स कमिंग. आप बात कर लें MCAT की, वी नो व्हाट्स कमिंग. आप बात कर लें SAT की, यू नो व्हाट्स कमिंग. आप बात कर लें LCAT की जो लम्स का टेस्ट होता है, आपको पता है क्या पैटर्न है. शायद आप लोगों को ना पता हो, एज इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज के पैटर्न जो है वो डिफाइंड है. बट व्हेन इट कम्स टू IBS टेस्ट द पैटर्न इज डिफाइंड. ऑल वी डू नो इज़ कि इंग्लिश में इतने से इतने MCQs होते हैं, मैथ्स में इतने से इतने MCQs होते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट्स कमिंग. नोबडी नो व्हाट्स कमिंग एंड नोबडी कैन इवन गेस. अगर आपको कोई कह रहा है ना कि मेरे टीचर ने ये कहा है, या कोई बच्चा कह रहा था कि इस मरतबा ये आएगा, या IB कोई पैटर्न है, IB ये चीज़ इतनी अटैम्प्ट्स के बाद टेस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है. आई मीन ऐसा होता है. ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि अभी जो टेस्ट हुआ था फरवरी में, यू कुड हैव, ये मैंने उसका नहीं लिखा हुआ, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो you could have 20 vocabulary questions in the English portion, you could have 15 questions on reading comprehension, you could have 10 questions on grammar. ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बिल्कुल अब जो 4 months बाद वाला टेस्ट है जुलाई वाला, उसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस ग्रामर के हो जाएं, 15 क्वेश्चंस पोम्स के आ जाएं, 10 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट से आ जाएं. हो सकता है ना ये आए ना ये आए, और एक कोई और चीज़ आ जाए. यू जस्ट हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग. तो आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि कुछ भी आ जाए आपको उसमें अच्छा परफॉर्म करना है. विच इज़ वाई दिस प्रिपरेशन इज़ डिफ़िकल्ट. अगर मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अगर आप SAT देखें तो आपको पता है कि रीडिंग के पोर्शन में जो है 5 आपके पास पैसेजेस हैं. if you talking about writing you have 4 passages. अगर आप मैथ्स नो कैलकुलेटेड पोर्शन की बात करें तो आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं. अगर आप मैथ्स कैलकुलेटेड पोर्शन की बात करें तो देयर 38 क्वेश्चंस. और आपको ये भी पता है कि किस किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं. दे आर प्रीटी रेपिटेटिव इन नेचर. अगर आप SAT की बात करें इट्स प्रीटी रेपिटेटिव इन नेचर. रेपिटेटिव एज इन आपको पता है कि ग्रामर में सर्टेन चीज़ें अगर मैंने अच्छी कर ली तो आई विल डू वेल. अगर मैथ्स में मैंने इन एरियाज़ पे काम कर लिया तो मेरा ये, ऑफ कोर्स उसमें भी आपके पास एक कर्व बनता है और उसका स्कोर भी उसके ऊपर डिपेंड करता है. वो सारे फैक्टर्स प्रेजेंट हैं. लेकिन मैं एक बात करूँ कि IB के टेस्ट के लिए ऐसा नहीं है. IB के टेस्ट के लिए देखिए, IB के टेस्ट के लिए IB ने सिर्फ जो है ना एक ब्रॉड सा करिकुलम बताया हुआ है, सिलेबस नहीं बताया हुआ. सिलेबस का मतलब है ये आएगा, करिकुलम का मतलब है ये है, वी कैन डू एनीथिंग. IB ने ये बोला था कि हम ग्रामर टेस्ट कर सकते हैं. IB ने ये नहीं बताया कि हम ग्रामर में क्या टेस्ट करेंगे. सिर्फ ये बताया था कि हम ग्रामर भी टेस्ट कर सकते हैं. दैट्स इट. तो ये जो पॉइंट बेटा मैं अभी आपको ये बता रहा था कि देयर इज़ नो सिलेबस बट एक ब्रॉड सा करिकुलम है. आपका बैच बेटा 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है. हम लेट मई तक आपका बैच इसमें जो है वाइंड अप इसको करेंगे सारी चीज़ों को, जिसमें से आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा और क्वेरीज सारी आपकी हो चुकी होंगी. उसके बाद जो है हम इसमें एडिशनल प्रैक्टिस के ऊपर ये पूरा टाइम स्पेंड करते हैं टिल द डे ऑफ़ योर टेस्ट. उसमें आपके यहाँ पे 12 फुल लेंथ टेस्ट हो रहे होते हैं. आपको सप्लीमेंट्री मटेरियल भी देकर हम और फर्दर प्रैक्टिस करा रहे होते हैं. इवन वो उससे पहले भी हो रहा होता है. लेकिन आपकी जो सिलेबस वगैरह है वो सारी चीज़ें जो है लेट मई तक ख़त्म हो जाएंगी. और पूरा 1 जून का मंथ जो है हम लोग खाली यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट और पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. दैट्स इट. अच्छा बेटा, टॉकिंग अबाउट दिस IB के लिए बेटा यू हैव 2 सॉर्ट्स ऑफ एडमिशन. एक है डायरेक्ट एडमिशन, एक होता है थ्रू इंटरव्यूज़. डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि यू क्लियर द टेस्ट. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़ वेट टिल अर्ली अगस्त और आपके पास एक फ़ी चलान आ जाता है. आपको उसमें फ़ी पे करनी है. दैट्स इट. एंड देन यू विल गो एंड टेक द क्लासेस फ्रॉम लेट अस से ट्रेडिशनली वो होते हैं 20th of August से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं. तो ये करना पड़ता है. डायरेक्ट एडमिशन का ये मतलब हो गया. अब थ्रू इंटरव्यू का मतलब ये है कि यू हैव क्लियर्ड द टेस्ट बट नाउ यू हैव 1 more hurdle देयर इन बिटवीन. वो है इंटरव्यू. अभी आपको इंटरव्यू भी देना है और इंटरव्यू का भी कट ऑफ होता है और इंटरव्यू में भी बहुत सारे लोग निकलते हैं.
तो ये है डायरेक्ट एडमिशन और इंटरव्यू का जो डिफरेंस है ना, वो लोग लगता तो वो बहुत आसान है कि यार अच्छा डायरेक्ट एडमिशन और इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू आप इतनी मेहनत करके जाते हैं और फिर आप एक इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं और फिर इंटरव्यू का वेट करना और फिर इंटरव्यू देकर एक और अनदर 10 डेज़ एक स्ट्रेस में रहना कि यार क्या रिज़ल्ट आएगा, कैसे होगा, वो क्या पूछेंगे, मैं क्या प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, इज़ इट इनफ। उन्होंने किसी चीज़ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली और मैं उसको सही से नहीं बता सका, उन्होंने कुछ ए लेवल्स का या इंटरमीडिएट का कुछ मुझसे पूछ लिया और वो मैं अच्छे से नहीं बता सका। उस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि भाई वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट सिलेबस क्या है, आपने कह दिया इंग्लिश, उन्होंने कह रहे हैं अच्छा तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि वाई हैज़ चार्ल्स डिकेंस फैंटेसाइज सो मच इन हिज नॉवेल्स। आप कहेंगे लो मुझे नहीं पता, आप लेकिन आपने ही बोला था आपका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। आपसे पूछेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है या आपकी फेवरेट फुटबॉल क्लब कौन सा है, आपने कह दिया चेल्सी। और आपसे कहेंगे कि अच्छा आप ज़रा हमें बताएं कि चेल्सी के ओनर ने अपनी वेल्थ जो है वो कैसे अर्न करी है। ये सब रियल क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के साथ हुए हैं, जो मैं आपको रिकॉल करके बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग एनी ऑफ दीज अप, ये पूछा जा चुका है। तो बेहतर है कि आप जो है डायरेक्ट एडमिशन के ऊपर फोकस करें। अभी तो कोविड की अटैम्प्ट थी जो राउंड 1 की थी, तो वो ऐसा इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन राउंड 1 में यूजुअली जो एक्सेप्टेंस रेट्स पिछले 2 सालों से रहा है वो 15 से 20% रहा है राउंड 1 में। आपका तो राउंड 2 है, बाकी ऑलमोस्ट 75 to 80% बच्चे वो निकाल देते हैं इंटरव्यू में। इस अटैम्प्ट में ऐसा नहीं हुआ फॉर्चुनेटली, जो अभी फरवरी वाला टेस्ट था हमारा। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि राउंड 1 में अगर आपका इंटरव्यू आ रहा है तो इट्स जस्ट IBS पोलाइट वे ऑफ टेलिंग यू नो। अगर पोलाइटली मना करना हो तो बस आप उसको इंटरव्यू के लिए बुला लो। इतना बुरा होता था इंटरव्यू का रिजल्ट, आप ज़रा पुरानी PDF से जाके चेक करें IB की, तो यू वुड नो। मतलब IB के इंटरव्यू का जो कट ऑफ है, राउंड 1 की मैं बात कर रहा हूँ, आपका राउंड 2 है वंस अगेन, वो इसके बीच में रहा था। और इसमें भी अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 इंटरव्यूअर हैं और एक आपको 8 out of 10 दे रहा है, दूसरा आपको 9 out of 10 दे रहा है, तो उनका अगर आप LCM लें तो वो 17 out of 20 बनता है। 17 out of 20 ट्रांसलेट्स टू 85%। और IB का जो कट ऑफ था वो 87 से 90% के बीच में होता था। तो इन दोनों के बीच में आपका कट ऑफ होता था। और अगर आपने एक इंटरव्यू से 8 out of 10 ले लिए, दूसरे से 9 out of 10 ले लिए, सो यू आर स्टिल शॉर्ट एंड यू वुड स्टिल फेल द इंटरव्यू कट ऑफ। तो पॉइंट मैंने थोड़ा सा क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि बेटा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBS टेस्ट देन गो फॉर द डायरेक्ट एडमिशन, दैट्स इट। बेटा राउंड 1 राउंड 2 का डिफरेंस ये है सिर्फ थोड़ा सा कि कुछ बच्चे जो है दे डिसाइड टू टेक इट अर्ली, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो जाता है कि लोग कुछ कहते हैं कि यार हम वी जस्ट वांट गेट इट आउट ऑफ द वे, और हम फिर सोली अपने इंटरमीडिएट और A लेवल्स पे फोकस करेंगे और वो फैब में टेस्ट ले लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें मल्टीपल चांसेस चाहिए, इफ़ यू नॉट एबल टू क्लियर इट इन राउंड 1 तो वी विल स्टिल हैव वन मोर अटेम्प्ट एंड विल टेक इट इन राउंड 2। और इस तरह बहुत सारे बच्चे करते हैं, दैट्स ऑफ कोर्स वेरी स्मार्ट। कुछ बच्चे राउंड 1 इसलिए दे देते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ जाके देखना है कि टेस्ट होता कैसा है, हम राउंड 2 में ही पढ़ेंगे, हम अभी खाली ऐसे दे रहे हैं। कुछ बच्चे पीयर प्रेशर में दे रहे होते हैं क्योंकि उनके सारे दोस्त दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपका राउंड 1 में एडमिशन हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि एक और एडमिशन एक और राउंड भी आपको देना है, डेट मीन्स यूर डन, अब आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, मोर लाइक क्या कोई डिफरेंस नहीं है। राउंड 2 के इंटरव्यूज थोड़े लीनियंट होते हैं हिस्टोरिकली, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें ये हमारे पास अभी का रिज़ल्ट है, ठीक है, जो अभी रिज़ल्ट आया था। तो 92 92 216 के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन था, 216 के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन है। और ये BBA का है, सॉरी ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है, आप ऊपर पढ़ लें BSAF। लाइकवाइज अगर आप BBA का भी देख लें तो BBA का भी 216 के ऊपर है। अगर आप SCT के थ्रू देखें तो SCT में अगर आपको SCT के थ्रू अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो SCT का कट ऑफ आई थिंक शुड बी हियर। SCT का कट ऑफ ये आपके पास लिखा हुआ है 1410। इफ़ यू हैव 1410 600 तो दोनों सेक्शंस में चाहिए। ये टोटल फॉर बोथ दिस सेक्शन शुड नॉट बी 1200, इट शुड बी एटलीस्ट 1410 अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए। अगर आप जितने भी लोग डायरेक्ट एडमिशन वाले हुए
आईबी के टेस्ट में, तो आप देख सकते हैं उन सब के ये स्कोर्स हैं। अब लाइकवाइज अगर आप बीबीए का चेक करें, सेकेंड 216, और इसी तरह जो एसईटी वाले हैं उन सब का डायरेक्ट एडमिशन के ये स्कोर्स रहा है। बेटा टोटल मार्क्स वंस अगेन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस ना। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 एंड 45 दोनों सेक्शंस में, तो यू गेट 4 मार्क्स फॉर गेटिंग 1 क्वेश्चन करेक्ट। तो 45 इंग्लिश में हो गए, तो 45 मैथ्स में हो गए, तो ये दिस एड्स अप टू 90, ठीक है। तो 90 इंटू 4 इज़ 360, ठीक है। अगर आपके पास 45 इंग्लिश में हो गए, 50 मैथ्स में हो गए, सो दैट एड्स अप टू 95, तो 95 इंटू 4 इज़ 380, तो ये वेरी करता रहता है, ठीक है। अब इस वाली अटैम्प्ट में 356 है, क्योंकि आईबी का एक क्वेश्चन में एरर था, ठीक है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन को डिडक्ट करा दिया, तो एक में 45 हो गए, एक में 4 हो गए, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब देखें सोशल साइंसेस का एडमिशन है 208 के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन। अब आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर। अब देखें 208 के ऊपर बेटा आपका बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का इंटरव्यू है। 216 के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन था, यू जस्ट सॉ इट। 216 के ऊपर आपने अभी देखा कि डायरेक्ट एडमिशन था। आई जस्ट शेयर विद यू अगेन, अगर आप चेक कर लें तो 216 के ऊपर यू हैड द डायरेक्ट एडमिशन फॉर BSAF, ठीक है। सेम गोज फॉर BBA कि यू हैड डायरेक्ट एडमिशन ऑन 216 BBA, बट लेट्स जस्ट से आपका 208 के ऊपर अगर आप जो हैं या आप हैं तो आपको फिर जो है इंटरव्यू देना पड़ेगा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का। इनफैक्ट 208 भी आप छोड़ दें, 212 के ऊपर भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। 216 आर द लीस्ट मार्क्स डेट आर रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट एडमिशन, लीस्ट इतने तो होने चाहिए। अच्छा, यू नो द पॉइंट आई रियली टोल्ड यू गाइस, इसके आपके जो मार्क्स बेटा इंक्रीज होते हैं वो 4 के मल्टीपल्स में इंक्रीज होते हैं, ठीक है। आपके मार्क्स इधर 216 आएंगे या 220 आएंगे या 224 आएंगे या 228 आएंगे या 232 आएंगे या 236 आएंगे। अब मैंने आपको अभी बताया कि 216 पे डायरेक्ट एडमिशन है, लेकिन 212 पे इंटरव्यू है। अब आप देखें ना, 212 वाले ये सारे बच्चे हैं, दे टेकिंग द इंटरव्यूज, ठीक है। 208 पे भी बेटा इंटरव्यू है, 204 पे फेल्ड है, 204 पे फेल्ड है, ना ही इंटरव्यू है ना ही डायरेक्ट एडमिशन है। अब मैं इसको आपको लिख के भी दिखा देता हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, अगर आप चेक करें तो बेटा 216 पे वी हैड द डायरेक्ट एडमिशन, 212 interview, in fact 208 से इंटरव्यू स्टार्ट होता है। और जस्ट टू सिंप्लीफाई इट इवन बेटर, आई वुड से 208 से 212 इंटरव्यू और 204 you're failing the test। अब आप मेरी बात सुने बेटा, देखें सिर्फ मैं आपको इतनी कह रहा हूँ कि अगर आप 204 ला रहे हैं तो 204 और 216 में जो डिफरेंस है इट्स ओनली 3 MCQs, 3 MCQs, समझ में आ रहा है आपको? 3 into 4 is 12। Now those 3 MCQs could be anything। एक मैथ्स की क्लास जो आपने छोड़ दी, it could be 3 vocabulary words that you didn't learn, it could be possibly 3 different questions on grammatical rules and then possibly you were absent जब मैंने वो rules पढ़ाए। It could be anything, it could be anything, it could be you taking a particular maths topic casually and thinking कि यार ये तो नहीं आएगा यार ये मुझे आता नहीं है और ना ही मुझे सीखना है, बस मुझे बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों बुरा। इट्स फाइन, अगर बुरा लगता है कर लो भाई, टेस्ट है, ठीक है। तो
टेस्ट के लिए करना पड़ेगा, इट्स मोर लाइक दैट, टेस्ट के लिए करना पड़ेगा। बुरा लगता है अच्छा लगता है वो तो अभी मैटर ही नहीं करा ना हमारे पास चॉइस है, चॉइस ही नहीं है, करना है। तो सिर्फ इतना सा फ़र्क है बेटा। आप ये देखें कि एक बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी 212 के ऊपर वो जाके इंटरव्यू दे रहा है। उस बच्चे को क्या चाहिए था? एक सही क्वेश्चन, एक सही क्वेश्चन, एंड दैट पर्सन वुड हैव गॉट इन द डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, अब अगर आपके मार्क्स 216 हैं या 260 हैं, यू आर स्टिल एज गुड एज दिस पर्सन। इनफैक्ट आपके मार्क्स 280 भी हैं तो आप भी तब भी आप इतने ही अच्छे हैं, क्योंकि आपका भी डायरेक्ट एडमिशन हुआ, उसका भी डायरेक्ट एडमिशन हुआ। अगर आप देखें तो IB का जो एडमिशन हो रहा है वो इधर 204 पे तो नहीं हो रहा, सॉरी, वो इधर 208 पे हो रहा है या 212 पे हो रहा है या 216 पे हो रहा है, या इससे ऊपर हो रहा है, दैट्स इट। अगर मैं इसको और फर्दर समराइज़ कर दूं तो ये दोनों लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और ये लोग डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा रहे हैं। अब आप ज़रा चेक करेंगे इंटरव्यूज़ कितने लोग दे रहे हैं। आप ये देखें कि जिस सीट के लिए आप compete कर रहे हैं और कितने लोग compete कर रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं बेटा ये इंटरव्यू दे रहे हैं, ये देखिए सारे लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। ये 48 लोग IB के टेस्ट वाले इंटरव्यू दे रहे हैं और बाकी ये सारे 116 में से अगर आप 48 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो बाकी लोग हैं ये SAT के थ्रू इंटरव्यू दे रहे हैं। अब BP के लिए भी आप ज़रा चेक करें बेटा, तो these 51 people are taking the interview। तो पॉइंट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप इन लोगों की बात करें तो या तो ये एक MCQ से रह गए या 2 MCQ से रह गए। मैं पिछले 10 मिनट से सिर्फ इस बात पे एम्फोसाइज़ करना चाह रहा हूँ कि एक या 2 MCQs भी कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं IBA के टेस्ट के लिए, दैट्स इट। अब एक या 2 MCQs की अगर आप थोड़ी सी मीनिंग यूँ भी समझे ना कि अगर आप पूरी टेस्ट प्रिपरेशन में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आपने शॉर्टकट्स यूज़ करे मैथमेटिक्स के अंदर और आपने ज़्यादा नहीं हर क्वेश्चन के अंदर 10 सेकंड सेव कर लिए। नाउ इफ़ यू हैड 50 क्वेश्चंस, सो 50 into 10 you'll be saving a total of 500 seconds just by using the shortcuts। अब मैं खाली शॉर्टकट्स की बात कर रहा हूँ, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मैं बात करता रहूँगा थ्रू आउट द कोर्स। तो अगर मैं सिर्फ शॉर्टकट की आपसे बात करूँ तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें। तो 500 seconds का मतलब होता है 8 minutes and 20 seconds। समझ में आ रहा है? 1 मिनट के अंदर 60 seconds होते हैं। 500 seconds translate to 8 minutes and 20 seconds। Now imagine that if you're using shortcuts in maths, you'll be saving yourself a total of 8 minutes and 20 seconds। And just imagine that how many additional questions now you can do in those 8 minutes and 20 questions, and see what kind of difference those additional questions can make। समझ में आ रहा है बेटा? इस तरह बहुत सारी चीज़ होती है। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अब एक एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, एक एक टॉपिक बहुत मैटर करता है, एक एक क्लास बहुत मैटर करती है, एक एक वोकैबुलरी का वर्ड बड़ा मैटर करता है। ठीक है, बेटा आपके पास ग्रेड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यू नीड 2B 1C for the BB program, you need 1B 2C for the BS program। Likewise, अगर आप intermediate से हैं, so you need 65% for BBA, you need 60% for BS। Please copy this as well। जी बेटा, IBA के लिए नहीं बेटा, there was just one attempt or there were actually a couple of attempts जब IBA के टेस्ट में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ऊपर था। ऐसी भी 2-3 अटैम्प्ट थी और BBA का कम था। उसकी वजह ये थी तब IBA ने सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन के लिए कट ऑफ जो रखा हुआ था वो बहुत आसान रखा हुआ था SAT का, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने
SET के लिए इस तरीके से अप्लाई कर दिया था, SET के थ्रू अप्लाई कर दिया था, तो टेस्ट के लिए जो सीट्स बची थी वो कम थी। अच्छा, IBA में ना SET का और IBA के अपने टेस्ट का कोई कोटा नहीं है कि SET के टेस्ट के लिए इतने बच्चे अप्लाई करेंगे, तो जितने बच्चे चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट लेकिन उनको कट ऑफ मीट करना पड़ेगा। तो जब कट ऑफ तब की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो तब SET का जो कट ऑफ था वो IBA ने काफ़ी लीनियंटली रखा हुआ था, तो काफ़ी बच्चे SET के थ्रू चले गए थे, क्योंकि SET पहले होता है, SET अक्टूबर में होता है और फिर दिसंबर में होता है। जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ तब SET अक्टूबर में भी होता था, नवंबर में भी होता था और जनवरी में होता था, तब दिसंबर नहीं होता था, ठीक है। मैं थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ 2016-17 की। तो काफ़ी बच्चों ने अप्लाई कर लिया था। तो SET की सीट्स के बाद या SET के एडमिशन्स के बाद IBA के अपने टेस्ट के लिए बहुत कम सीट्स बची थी। तो सप्लाई एंड डिमांड वाली चीज़ हो गई थी कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा थे और सीट्स बहुत कम थी, तो IBA ने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कट ऑफ काफ़ी ऊपर कर दिया था। तो ये हो सकता है। तो ये तो इसलिए आप समझ लें कि ज़्यादा सॉर्ट आफ्टर इसलिए है, ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप ज़्यादा मेजॉरिटी से पूछें तो वो कहेंगे कि हमें BBA करना है, उसके बाद बच्चे कहते हैं कि हमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना है, उसके बाद बच्चे आपको अब सोशल साइंसेस की तरफ थोड़ा सा बच्चे इंक्लाइंड हो रहे हैं, या उनको मसला बहुत सारे मसले ये हैं कि बच्चे काउंसिल भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, मसला है कि बच्चे काउंसिल इसलिए भी नहीं हैं कि बच्चे बहुत कम बच्चे हैं जो इस तरीके से इस तरफ सोच रहे होते हैं। कुछ बच्चों ने के पेरेंट्स ने उनको बताया होता है कि उन्होंने क्या करना है, कुछ बच्चों की नेचुरल इंक्लिनेशन होती है, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है। जो बच्चे काउंसिल हो रहे होते हैं वो भी बड़े कंफ्यूज हो रहे होते हैं। जो काउंसलर्स हैं हमारे पास, थोड़ा सा एक अजीब सी चीज़ है कि वो काउंसलर्स भी हमारे पास जो है ना, वो आप समझें कि वो दोनों तरीक़े से, दो जगहों से पेड हो रहे हैं। एक तो उनको स्कूल्स पे कर रहे हैं, अच्छा एक और चीज़ ये है कि उनको यूनिवर्सिटीज़ भी पे कर रही हैं। अगर आप उनको कहें, आप अपने काउंसलर के पास जाएँ, आप कहें भाई मुझे सर्टेन यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है, तो काउंसलर जो है ना आपको उल्टा कहते हैं कि नहीं जी आप इधर, अच्छा सारे काउंसलर्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ काउंसलर्स, मुझे बच्चों ने ही ये बताया मेरे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि वो काउंसलर कह रहे हैं नहीं जी आप यहाँ नहीं अप्लाई करें, आप यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। और जब उनसे ही पूछो कि ऐसा क्यों है, तो वो ये बताते हैं कि सर उन लोग की वहाँ से भी कमीशन होती है कि उनको बच्चे जमा करके देने होते हैं, तो बहुत सारे चक्कर हैं। तो यू जस्ट हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि आप किस तरह से कर रहे हैं। तो बच्चे जो है ना, एक तो ये, लेकिन हाँ आप इस कह सकते हैं कि BBA की तरफ लोगों की इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से BBA और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कट ऑफ ज़्यादा होता है। SET में बेटा आपके पास होता है अक्टूबर में, दिसंबर में, मार्च में, मई में, जून में। तो जून वाला प्रेफर है कि देना चाहिए नहीं, क्योंकि मतलब काम वो होगा, क्योंकि जी बेटा होगा। एक तो नहीं, आपका मई वाला होगा, जून वाला नहीं होगा जी। जून का आपके पास, क्योंकि आपका टेस्ट जो है जुलाई 2 पे है, लेकिन जून में अगर आप दे दें और आपका रिजल्ट आ जाए तो आई गेस वो भी हो जाएगा। जून की डेट्स क्या हैं, डिपेंड करता है। नहीं, रिजल्ट आपके 17 डेज़ में हिस्टोरिकली SET का आ जाता है, डिपेंड करता है, क्योंकि SET का रिजल्ट एक साथ नहीं आता, वो रोल आउट होता है। कुछ बच्चों का जो है ना ऐसे भी होता जाता है, हमारे कुछ बच्चों का थोड़ा सा लेट आ जाता है, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा ना हो, ना करे आपके साथ, तो अब वो भी काउंट हो जाएगा। लेकिन अच्छा है कि हम दे दो हमारी प्रैक्टिस हो गई, और मतलब दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें दिखा था आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी जी, लेकिन CBM में SET नहीं चाहिए, ज़ैबिस में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, तो CBM में नहीं चाहिए। हबीब में सही है, एक्सेप्टेबल है। तो डिपेंड करता है आप बाकी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करेंगे, वो कहते हैं आप उनका अपना टेस्ट है। और उनके टेस्ट की भी बेटा डेट आ गई हैं एज वी स्पीक, आज ही की डेवलपमेंट है। तो उनके अभी जो टेस्ट की डेट आई है वो अंडर ग्रेड की आई है 20 जून। जी बेटा पहले होगा, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी तब तक। सर तो जैसे हमारा भी CIs वगैरह आएंगे नहीं क्या करें, तो उस टाइम पे मैं कैसे बेटा अभी उसमें बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें बेटा कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिथ्स हैं, मैं इसमें आपसे बात कर लूँ। देखें, एक तो ये है कि आप अगर ये शायद आपने कहीं से सुना हो कि यार ये टेस्ट बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो ये टेस्ट एट ऑल प्रेडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब यू मे हैव एन एल्डर कज़न और एन एल्डर सिबलिंग टेलिंग यू यार इतना क्यों पढ़ रहे हो, मैंने तो खाली O लेवल्स के मैथ्स के P1 के पास पेपर्स ही कर लिए थे, मेरा टेस्ट हो गया था,
मैं और कोई बात नहीं करूँगा। इवन अगर आप ट्यूटर प्लस के बच्चे को लेकर आ जाएं 2016-17 का और उसको कहें कि वो सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन से 2021 का टेस्ट देते तो वो बच्चा फेल कर देगा, ठीक है। क्योंकि टेस्ट जो है ना आपका बहुत IB के टेस्ट बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। उसमें बहुत न्यू चीज़ें आती जाती हैं, बहुत न्यू वेज़ में आपको टेस्ट करते लग जाते हैं। वो एक पॉइंट इज कि दे डोंट रियली स्टिक टू अ फिक्स पैटर्न, सो यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। यू जस्ट हैव टू बी, एक तो ये कि यू हैव टू बी इन वेरी गुड प्रैक्टिस, और फिर ये कि आपको अपने आप को इतना ब्रश अप करना पड़ता है वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस करके कि आप कहते हैं कि भाई आई एम जस्ट रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पैटर्न दैट IB मे थ्रो एट मी, आई एम जस्ट रेडी फॉर इट। मुझे पता है कुछ भी आ जाए, मुझे अपने आप को ऐसे करना है। लेकिन आप 20 और 19 लाइक 2019 वाले पेपर्स से थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं। फेयर आइडिया, देखिए मैं पास पेपर्स के लिए बेटा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पास पेपर्स आर ओनली अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। पास पेपर्स जब हम इंटरमीडिएट या A लेवल्स में कर रहे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग ये बना होता है कि हमारे बिल्कुल ऐसे ही कुछ पेपर आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पास पेपर्स IB के टेस्ट के लिए दे आर ओनली अ गुड प्रैक्टिस, बस वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब उसमें और कुछ नहीं है। और सर एक और बात भी कि वैसे तो हमारी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी और यहीं से जो पास पेपर सब कुछ मिलेंगे वो काफ़ी होंगे, लेकिन क्या हमें लाइक D1 D2 इस तरह कुछ करने की जरूरत है? D1 D2 D3 D4 बेटा जस्ट इन केस अगर डिपेंड करता है कि आपकी मैथमेटिक्स करंटली कैसे, ठीक है। एक तो हम वैसे तो सारी चीज़ें बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है, वो अभी आप देख भी लेंगी, लेकिन अब आप फर्दर आप ये कह रही हैं कि सर ये जो चीज़ें ना मैं थोड़ी भूल गई हूँ, मैंने करी भी तो है लाइफ में लेकिन मैं भूल गई हूँ। मैं कहूँगा अच्छा आप D1 D2 D3 D4 को और रिविज़िट कर लें, कुछ चीज़ें कुछ क्वेश्चंस को उसमें से स्किम करके, पूरी नहीं लेकिन स्किम करके आप उनको दोबारा कर लें एंड सी हाउ यू आर परफॉर्मिंग, और बस खाली उनको रिविज़िट करने के लिए, नॉलेज रिफ़्रेश करने के लिए। आप ये कहें कि सर इज़ दिस एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट और क्या सबको बच्चों को करनी पड़ती है D1 से D4, तो दिस नथिंग लाइक दैट, ठीक है। हमारी कुछ और अपनी PDFs ऐसी बनी हुई हैं जो कि हमने पैरेलल हम बच्चों को इशू कर देते हैं। उन बच्चों को, मतलब जो बच्चे मैथ्स में कंपैरेटिवली अच्छा नहीं कर रहे होते, या हमें लग रहा होता है कि वो थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, तो वो खुद उन बच्चों को PDFs इशू कर देते हैं और उसमें ईजी टू मीडियम टू हार्ड वो फिर वो ट्रांजिशन हो जाता है बच्चा खुद। तो वो बुक ही ऐसे बनी है कि उसमें टॉपिकली, अब एक टॉपिक है इनइक्वालिटीज़, तो इनइक्वालिटीज़ के इजी सवाल, फिर मीडियम, फिर हार्ड, तो बच्चा खुद ऐसे ट्रांजिशन हो जाता है कि उसको समझ में आ जाता है, तो वो नॉलेज वैसे रिफ़्रेश हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर हमें लग रहा होता है कि यार हाँ ऐसा है, तो हम बच्चे को खुद बोल देते हैं कि हाँ यार आप ये बुक्स जो है ना ज़रा कुछ करें, ठीक है। तो एम्फेसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट वंस अगेन बेटा कि टेस्ट जो है आपका बिल्कुल एट ऑल प्रेडिक्टेबल नहीं है, मतलब ये बिल्कुल डू नॉट लेट एनीवन टेल यू कि टेस्ट प्रेडिक्टेबल है। आपको बहुत सारे रूकीज इस तरह से बच्चे मिलेंगे जिनका अभी राउंड 1 में टेस्ट हुआ है, एंड यू वुड सी देम एडवाइजिंग देयर ऑन वेरियस फेसबुक ग्रुप्स कि ये कर लो वो कर लो, वो गुरुज बन जाते हैं एक टेस्ट, मतलब पता नहीं कैसे कर लेते हैं, लेकिन उनका एक टेस्ट का अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस होता है, वो कहते हैं बस वी आर रेडी टू एडवाइस एनी वन। तो ऐसे मत करिएगा क्योंकि उनका एक अटेम्प्ट का ही एक्सपीरियंस, उन्हें नहीं पता कि हिस्टोरिकल पैटर्न्स क्या रहे हैं IB के, उनको ये पता है कि उनकी अटेम्प्ट में क्या है, बट दे डोंट नो व्हाट विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट मल्टीपल अटेम्प्ट्स। उनका एक्सपीरियंस इतना ही होता है कि बस वो अभी राउंड 1 में एडमिशन हो गया, उनमें से जो गैप ईयर पे हैं वो बिल्कुल फ्री हैं इस वक्त, जो गैप ईयर्स में नहीं थे वो अपने CIEs या इंटरमीडिएट में लग गए हैं, तो उसमें बिज़ी हो गया। वो जो लोग फ्री हैं वो दूसरों को बैठ के एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन वो भी जब अभी अगस्त में बिज़ी हो जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ जाके, तो उनको भी नहीं पता होगा कि बाद वाली अटेम्प्ट्स में क्या आ रहा है, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनका काम ही होता है वो इसी में लगे रहते हैं, ठीक है। तो इट्स एडवाइजेबल कि आप जिनका काम है उनसे बेहतर सुने, और जो बच्चे हैं उनको क्या उतना नहीं पता होता। बहरहाल मतलब हम भी इंटरनेट पे कई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं और हम तो सिर्फ पढ़ ही रहे होते हैं ना, मतलब हम तो कहते हैं यार आप देखो वो बच्चा कितना सीरियसली पूछ रहा है और ये बच्चा उसको कितना मिसगाइड कर रहा है, लेकिन अब ना किसी के पास भी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ बैठ के हर किसी के कमेंट के नीचे भाई नहीं है ऐसा ही ऐसा है, वो फालतू है फेसबुक पे तो आर्ग्यू करना किसी से भी। तो एनीवेज बेटा मिथ नंबर 2 इज़ के आप कहें कि भाई मेरे पास O लेवल मैथ्स में C था या D था, या मैं प्री मेडिकल से हूँ तो सर मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा, मुझे नहीं पता आप लोग का क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है, बट देयर हैव बीन टू मेनी स्टूडेंट्स हेयर
who have taken the IBS test from this very room where we're sitting, और वो बच्चे MCAT देकर आते हैं और उनके डिज़ायर्ड जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता या उनको MBBS करना होता है, उनका एडमिशन डेंटिस्ट्री में हो जाता है और वो कहते हैं अच्छा अब हम IB जाएंगे और हमें सोशल साइंसेस पढ़ना है, एंड दे डू प्रीटी वेल। हालांकि उनको भी मैथ्स पढ़े हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन वो मेहनत करते हैं और वो एडमिशन होता है। ऐसे भी बच्चे हैं, द सेम ब्रेथ आई वुड टेल यू कि ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मैथ्स में फर्दर मैथ्स में भी A स्टार होता है A लेवल्स में, और वो नहीं कर पाते क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से दे आर टेकिंग इट वे टू कैजुअली, एफर्ट पुट इन नहीं करते तो नहीं होता, ठीक है। दिस टेस्ट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद हाउ गुड और बैड यू आर एट इंटरमीडिएट और A लेवल्स, ये याद रखिएगा। ये मैटर ही नहीं करता आपके A लेवल्स में कितने A स्टार्स हैं या आपके इंटरमीडिएट में क्या परसेंटेज है, डजेंट मैटर। मैंने इंटरमीडिएट में 60% वाले बच्चों को A लेवल्स में 2C 1B वालों को भी पास होते हुए देखा है। मैंने 2 स्टार 1 A वाले को 85% वालों को भी फेल होते हुए देखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को बस बेटा थोड़ा सा समझ लें। वो आपका पूछते हैं ना बैकग्राउंड नहीं बेटा फॉर्म में लिखा होता है। नहीं, इंटरव्यूज़ के अंदर भी आपकी जो फॉर्म जो जाता है, आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी में उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं। देखिए पॉइंट इस के इंटरव्यू एक तो चीज़ है कि आप अवॉइड करें इंटरव्यू, ठीक है, go for the direct admission. The point I'm making is if you're working too hard and if you're trying to get, let's just say 2 or 4 marks, so why wouldn't you put a bit extra effort and get another 3 MCQ right and get a direct admission? समझ में आ रहा है? तो एक तो ये चीज़ हो गई, लेकिन अगर वो है भी तो एंड इफ यू डूइंग प्रीटी वेल देयर इन द इंटरव्यू तो कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं आप कुछ भी इंटरव्यू में कह लें आपके ग्रेड्स ही हमें अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा नहीं होता। जी देखिए पॉइंट इसके आप टेस्ट क्लियर करके इंटरव्यू दे रहे हैं ना, अब आप एक फ़िल्टर तो आपने क्लियर कर लिया ना, ठीक है। अच्छा मिथ नंबर 3 इसके बेटा, वंस अगेन कुछ बच्चे आपको कहेंगे, पुराने बच्चे ही आपको इस तरह कह सकते हैं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा बड़े होंगे कि आपको इस टेस्ट के लिए पढ़ना नहीं पड़ता। यार क्यों इतना पढ़ रहे हो यार तुम, मैंने तो कभी इतना नहीं पढ़ा था, तुम इतना पढ़ रहे हो यार, इतना तो किसी टेस्ट के लिए नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं है भाई, आप उनको कहें ठीक है आप भी मेरे साथ टेस्ट देते हैं फिर, दैट्स इट, यही आप कह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, अब इस टेस्ट के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, there's just too much to cover in this test now. If you talk about vocabulary, there's a lot of vocabulary. If you talk about poems, there are too many poems, there are too many poets, there are too many poems की techniques, बहुत सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें कि आप कहेंगे कि यार मुझे तो लग रहा है कि मैं साथ एक और चीज़ भी कर रहा हूँ इंटरमीडिएट और A लेवल्स के, जो कि विच इज़ एज हार्ड एज इंटरमीडिएट और A लेवल्स। तो ये याद रखिएगा, मैं हमेशा बच्चों को ये बताता हूँ कि बेटा चाहे आपका इंटरमीडिएट का सेकेंड ईयर हो या आपका A2 हो, ये दोनों ईयर्स चाहे आप A लेवल्स हैं या आप इंटरमीडिएट हैं, ये बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। यू जस्ट हैव अ लॉट टू डू इन दिस सेकेंड ईयर ऑफ योर इंटरमीडिएट और A लेवल्स। काउंसलर्स भी आपके पीछे होते हैं, वो आपको कह रहे होते हैं आप ये करें। एक पेरेंटल प्रेशर होता है, एक पीयर प्रेशर होता है, एक आप खुद एक एकेडमिक प्रेशर होता है, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है, आपको एक अच्छे ग्रेड्स भी मेंटेन करने हैं और आपको एक अच्छी परसेंटेज भी लेकर आनी है। देयर इज़ जस्ट टू मच टू डू इन टू लिटिल टाइम, एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिन फॉर एवरी सिंगल पर्सन, ठीक है। सो यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन हु इज़ बीइंग पुट थ्रू दिस, आई मीन एवरीबडी हैज़ बिन थ्रू दिस। हर किसी का जो है वो इसी पूरे पेपर पैटर्न से या पूरे समझे कि इसी सिस्टम से वो गुजरा है और लोगों ने ये सारी चीज़ें ऐसे ही करी हैं। पॉइंट इज़ कि यू जस्ट हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ टाइम एंड द कंडीशंस एंड एवरीथिंग, और उसी में आपको अच्छा करना है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें बहुत टफ है, आप कहेंगे यार इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, लेकिन बहुत क्रंच फेस है आपकी लाइफ का। देखिए एक और भी चीज़ है कि you're taking one of the most important decision of your life when you're barely 17, 18 or 19. मतलब the thing is कि this is something, or these next 4 years of life of your life are going to be something on which your entire life or a major chunk of your life is going to depend on. I mean the university that you go to. If you end up in a bad university तो वो एक मसला है,
आप लोग इस जब आप जिस स्टेज पे आप हैं तो बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर वो बीबी वहाँ से भी कर लो वहाँ से भी कर लो तो बीबी ही है, सेम ही है। तो ये ए लेवल्स नहीं है कि तुम समझ रहे हो कि वो मैं वहाँ ए लेवल्स उस स्कूल से कर लूँ या उस स्कूल से कर लूँ, तो मेरा एग्ज़ाम तो CI नहीं लेना ना, तो सेम ही कोर्स है तो क्या हुआ, सेम परसेंटाइल बनेगा और सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में मैटर करता है कि तुम किस यूनिवर्सिटी गए हो। ठीक है, बेशक दो यूनिवर्सिटी, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास एग्जैक्टली 100% जो है सेम सिलेबस फॉलो हो रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ पढ़ा रही होगी, हाँ ऑफकोर्स मेजर चंक ऑफ कोर्स शायद सेम ही होगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी कुछ पढ़ा रही होगी, बाकी यूनिवर्सिटी वो नहीं पढ़ा रही होगी। बट इट इज़न्ट व्हाट दे आर टीचिंग, इट्स हाउ दे आर टीचिंग, इट्स एक्सपीरियंसेस दे आर गिविंग यू। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ और वो यूनिवर्सिटी कुछ आप समझा रही है, तो दोनों के समझाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और वो आपको किस तरीके से पॉलिश कर रही हैं और वो आपके अंदर क्या चीज़ें जो है इंग्रेन कर रही हैं, इंकलकेट कर रही हैं ताकि यू कुड बिकम अ बेटर पर्सन, अ बेटर प्रोफेशनल, तो वो अप्रोचेस में बड़ा फ़र्क है। ठीक है बेटा, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मसला सिर्फ ये होता है कि आप लोग या आपकी एज का कोई भी बच्चा जो है वो इतना छोटा होता है कि उसको पता ही नहीं है कि यार मैं अपनी लाइफ का एक इतना इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ले रहा हूँ। मतलब मैं बच्चों को सिर्फ हमेशा ये कहता हूँ कि बेटा यूर अभी आप लोग ऑनेस्टली, मैं आपको नहीं कह रहा, आप में से कोई भी बच्चा या आपकी जगह कोई भी यहाँ पे बैठा होता तो वो ब्लाइंड फोल्डेड है अभी। ठीक है, you'll only get to unblind yourself when you've passed out from a university, तब आप अनब्लाइंड फोल्ड करेंगे अपने आप को और आप देखेंगे कि यार अच्छा वाकई में यार ये बड़ा मैटर करता है ये यूनिवर्सिटी में, किस यूनिवर्सिटी में था और कहाँ पे गया। मतलब अ गुड यूनिवर्सिटी डिसीजन कैन चेंज एवरीथिंग फॉर यू, likewise a bad university decision is really hard to undo then। फिर आप ये कहते हैं जी मैं एक अच्छी जगह से MBA कर लूँगा और वो कॉम्पनसेट कर देगा मेरी एक बुरी यूनिवर्सिटी को, तो उसके चांसेस बहुत कम हैं। कम इस तरीके से हैं कि डिपेंड करता है कि आपके पास करंट नॉलेज कितनी है। आप कहेंगे मैं इंटरनेशनली जाके MBA कर लूँगा, वो यूनिवर्सिटी आपको लेना चाह रही है नहीं चाह रही। अब इंटरनेशनली भी सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं होती बेटा। ठीक है, तो ये भी बड़ा मैटर करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और इंटरनेशनली आप किधर अप्लाई कर रहे हैं। जिसको आप इंटरनेशनली अच्छा समझ रहे हैं, आप वहाँ जाते हैं, आप कहते हैं यार ये क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो मैं इसलिए आया, मैं तो इतना सुनकर आया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो बेहतर है कि इस पॉइंट में या इस फेज़ में थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और एक अच्छी जगह पर एडमिशन ले लिया जाए। ठीक है, अदरवाइज़ देखें अगर आपको लाइफ में अच्छा करना है तो आपको कभी ना कभी एक एफ़र्ट तो ज़रूर पुट करनी होती है। ठीक है, आप कुछ भी फील्ड चूज़ कर लें, आप मेडिसिन चूज़ कर लें, आप इंजीनियरिंग चूज़ कर लें, एक जो हार्ड वर्क वाला और इंटेंस हार्ड वर्क वाला फेज़ है ना, वो हर किसी की लाइफ में ज़रूर आता है। वो आप डिसाइड कर लेंगे आपको कितना जल्दी लाना है। मतलब इट्स लाइक एक राइड है जो आपको ज़रूर लेनी है। अब आप डिले कर सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। ठीक है, लाइक आप 18 के हो गए, अब आपको NIC बनवाना है। ठीक है, अब आप डिसाइड कर लें आप कब बनाएं। ऑफ कोर्स द अर्लियर यू गेट इट डन तो बेटर इट इज़, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे भाई आपके NIC किधर है। लेकिन आप डिले भी कर लें, फिर आप बोलते नहीं अभी तक बनवाया नहीं, लेकिन एक बार आपको उस पूरे प्रोसेस से गुजरना ज़रूर है। ठीक है सर, स्मार्ट कार्ड की अगर एक्सपायरी डेट 2022 मतलब 2025 की हो तो भी NIC बनवा लो स्मार्ट कार्ड से। IB के लिए आई थिंक इट्स फाइन। नहीं, यहाँ पे जो रहते हैं 18 प्लस हो गए तो दूसरा बनवाना अभी CI के लिए तो स्मार्ट कार्ड चाहिए। हाँ, तो वो शायद बनवाना पड़ेगा, शायद सही हो जाएगा। अच्छा बेटा, एक और भी चीज़ देखें, 2009 से पहले जो है द टेस्ट यूज्ड टू बी फेयरली प्रिडिक्टेबल। आपके पास सिनोनिम्स आ जाते थे, एंटोनिम्स आ जाते थे, ग्रामर थी, ऐसे नहीं होता था, इजी टॉपिक्स आते थे मैथ्स में। फ्रॉम 2009 टू 2015 IBA डॉक्टर इशरत हुसैन एक आए थे IBA के अंदर डीन। ही इंट्रोड्यूस अ कपल ऑफ चेंजेस, ही मेड अलॉट मैनी चेंजेस इन द टेस्ट एज वेल। उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने मैथ्स में और टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करा दिए। 2016 ऑनवर्ड्स बेटा IBA स्टार्टेड लीनिंग ऑन टुवर्ड्स SAT। उन्होंने बहुत ज़्यादा न्यू SAT जो करंट SAT है उस वैसे वाले आप उसमें से भी क्वेश्चंस देना शुरू कर दिए। फिर 2018 राउंड 1 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन IBA इंट्रोड्यूस द पोम्स, और फिर कुछ मैथ्स के और एडवांस टॉपिक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करे।
तो बेटा आपकी जो यहाँ पे प्रिपरेशन होती है ना, उसमें हम ये भी कर रहे होते हैं, ये भी कर रहे होते हैं, ये भी कर रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं। इनफैक्ट एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं SAT-2। एक आप जो नॉर्मल SAT देते हैं उसको कहते हैं SAT-1, एक होता है SAT-2 जो होते हैं सब्जेक्ट टेस्ट। तो उसमें मैथ्स के 2 लेवल्स होते हैं, एक मैथ्स लेवल 1 होता है, एक मैथ्स लेवल 2 होता है। तो हम वो मैथ्स की भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि यार व्हेन इट कम्स टू मैथ्स वी लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, ताकि हम ओवर प्रिपेयर्ड हो जाएं रादर देन बीइंग अंडर प्रिपेयर्ड मैथ्स के लिए बेटा। तो ये है कुछ। अच्छा, कुछ एक बात हम और कर लें बेटा। देखिए आपके पास वी जस्ट टॉक अबाउट द प्रोग्राम्स। तो आपके पास ये 4 प्रोग्राम्स हैं जिनका टेस्ट 4 जुलाई को है। इन 2 प्रोग्राम्स का टेस्ट आपका जो है वो 25 जुलाई को है। स्कॉलरशिप्स बेटा IB के टेस्ट में कैसा होता है, देयर वाज अ टाइम जब आप टेस्ट में अगर टॉप 50% लोगों में होते थे, टॉप 50% लोगों में, तो आपका एडमिशन हो जाता था मेन कैंपस में जो कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर है। अगर आप बॉटम 50% में तो आपका एडमिशन हो जाता था गार्डन कैंपस में जो सिटी कैंपस है IB का, ठीक है। जो मेन कैंपस वाले होते थे उनकी फ़ीस 50% वेव ऑफ होती थी, उनको 50% जो है लेजर से स्कॉलरशिप मिल जाती थी। फिर IB ने कहा अच्छा हम ऐसा करते हैं कि हम जो है खाली अब फिर चेंज करके IB ने कहा कि हम टॉप 10% बच्चों को अपने स्कॉलरशिप देंगे जो हमारे टेस्ट में टॉप 10% परफॉर्मर होंगे। अब वो भी नहीं है आपकी अटेम्प्ट में। अब आपकी अटेम्प्ट में कि आप मेरिट तो अभी आपको नहीं मिल पाएगी, आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मिल सकती हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के अंदर होता ये है कि आपको ऑफ कोर्स पहले एक टेस्ट क्लियर करना होता है। टेस्ट क्लियर करने के बाद एक पूरे स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है डेट यू हैव टू मीट। उस पूरे क्राइटेरिया में आपके पास सर्टेन चीज़ें हैं जिसमें आपसे आपके पेरेंट्स की पे स्लिप्स भी मांग सकते हैं और मांगते हैं। वो ये भी चेक करते हैं आप किधर रह रहे हैं, जो उनका फॉर्म है उसके अंदर कई चीज़ें हैं कि आपके घर के अंदर अप्लाइंसेस कितनी हैं, कौन सी चीज़ कितनी है। कभी कभी आपका घर को भी वो विज़िट करते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलती है और उसकी भी एक डेडलाइन है, उसको भी फिल आउट आपको करना पड़ता है। अगर आप किसी को भी इसमें स्कॉलरशिप के हवाले से हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज़ रीच मी आउट। और मैं आई कीप इट वेरी कॉन्फिडेंशियल। मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की इस तरीके से उनको गाइड करता रहता हूँ, उनको मैं फॉर्म में ही फिल मतलब मैं गाइड करता रहता हूँ, लेकर वगैरह वो लोग ही आते हैं और उसको फिल वो लोग ही करते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि यार ये चीज़ें आपने सही नहीं लिखी, इसको आपने सही से करना है कि वांट टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप। ऐसा नहीं है कि IB आपको आपके फाइनेंसेस की वजह से निकाल देगा। अगर आपको ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज़्यादा वर्दी हैं तो आपके तो चांसेस ही बहुत अच्छे हैं स्कॉलरशिप के, ठीक है। लेकिन IB ने अपने प्रोस्पेक्टस में भी बहुत क्लियरली डिफाइन करा हुआ है कि हम आपको आपके फाइनेंसेस की वजह से कभी भी जो है ना एडमिशन, ऐसा नहीं है कि हम आपको एडमिशन ना दें जस्ट बिकॉज कि आपके फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दें। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं कभी प्रॉपर जाकर एक जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट के बच्चों को मैं काउंसिल करूं, लेकिन विल पॉसिबली डू डैट सम टाइम। और अब हम करेंगे भी क्योंकि हम यूजुअली तो अभी तक हम सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू मार्केट करते हैं, लेकिन हम अब दूसरी चीज़ों पे भी जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को बहुत ज़्यादा काउंसिल करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन वो वेस्ट हो जाता है। वो ये समझता है कि हम जहाँ हम इंटरमीडिएट कर रहे हैं और उसके बाद वो बेचारे NIT चले जाते हैं, वो समझते हैं कि हम IB की फ़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दे डोंट इवन नो कि ये भी एक रास्ता है। बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि कई बच्चों को तो मैं बताता हूँ वो सरप्राइज होते हैं, सर ये ऐसे भी होता है, सर हमें तो नहीं पता था, सर देयर आर टू मेनी किड्स लाइक दैट। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि IB के टेस्ट के लिए 2 पोर्शंस होते हैं, इंग्लिश और मैथ्स। लेकिन ट्यूटर प्लस में आपके पास जो है IB के टेस्ट के देयर आर 4 पोर्शंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीडिंग एंड वोकैब्स। इंग्लिश आपको पता है क्या है, इंग्लिश के अंदर ग्रामर होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको इंग्लिश का कोर्स मैं आपको लिखवा भी दूंगा, सिलेबस उसमें हम जो फॉलो करेंगे। मैथ्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रीडिंग क्या है एंड वोकैब्स क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट अ बिट। बेटा वोकैब्स में आपके पास लार्जली 2 किस्म की वोकैब्स होती हैं। एक होगी ट्यूटर प्लस वोकैब्स जो आपके पास एक वोकैबलरी की बुक मिलेगी, एक है नॉन ट्यूटर प्लस वोकैब्स। अच्छा, ट्यूटर प्लस वोकैब्स तो बहुत बेसिक है और बहुत सिंपल है, जिसमें ट्यूटर प्लस वाली वोकैब्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बेटा 1 मिनट आप लोग ज़रा रुक जाएं और फिर कॉपी कर लीजिएगा। हल्के भी ये इसमें ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, विच इज़ व्हाई आई डिडंट लेट यू गाइस कॉपी। मतलब इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैं इसमें आपको कॉपी कराता। तो
ये तो एक आपको प्रॉपर वोकैबलरी की बुक मिल जाएगी और आप उसको जो है फॉलो करेंगे और मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे करना है। NTPV का मतलब है नॉन ट्यूटर प्लस वोकैबलरी। नॉन ट्यूटर प्लस वोकैबलरी बेटा कौन सी वोकैबलरी है? देखें, इसको मैं थोड़ा सा आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बता देता हूँ कि फॉर every batch over here we have a WhatsApp group and we will keep providing you with a lot of reading material through PDF। आपको PDF पता है क्या होता है? ठीक है, तो हम आपको PDF की फॉर्म में जो है रीडिंग मटेरियल इशू करते जाएंगे। ठीक है, वो रीडिंग मटेरियल आपने जो है उसके लिए हम आपको स्पेसिफिकली एक डेडलाइन दे देंगे कि बेटा ये आपने तब तक ये हमें पढ़ के दे देना है। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ें। एडवाइजेबल तो मैं तो यही बच्चों को कहता हूँ कि अगर 80 पेजेस हैं आप उसमें से इंडेक्सेस वगैरह सारी चीज़ों को सेपरेट कर दें। 70 पेजेस बच गए, डिवाइड बाई कर दें नंबर ऑफ डेज से। मैं यूजुअली आपको एक वीक दूंगा, जितने पेजेस बच जाएँ उनको एक दिन में कर लें। जो भी आपका आंसर है उसको एक दिन में कर लें। ठीक है, वो बहुत अच्छा होता है तरीका। अब उसमें करना कैसे होता है इसमें बेटा, इसका तरीका ये है बेटा आप कि आप रीडिंग कर रहे होते हैं और आप समझते हैं कि यार देख पैराग्राफ है किस बारे में। आप एक सेंटेंस पढ़ते हैं, आप उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप किंडरगार्टन में नहीं हैं, आप कोई 2 साल के 5 साल के टॉडलर भी नहीं है कि आपको पता भी नहीं है कि यार ये क्या लिखा जा रहा है, बस आप पढ़े जा रहे हैं। इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू यू। आपको समझना है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब जब आप समझने लगेंगे तो यू मे कम अक्रॉस सम वर्ड्स और अलॉट मैनी वर्ड्स जो कि आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक आपको डिक्शनरी की एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम ये है। मैं भी आपको कॉपी करने दूँगा। ठीक है, जिसका नाम ये है, और आपने उस पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग फ़ौरन फाइंड आउट करनी है। अच्छा, आपको ऐप स्विच नहीं करनी कि आप कहें यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अब ऐप स्विच कर रहा हूँ, फिर मैं पढ़ रहा हूँ, ऐप स्विच कर रहा हूँ। आपने जो भी मैगज़ीन है आपने लैपटॉप पे पढ़ना है, किसी और स्क्रीन पे पढ़ना है। ठीक है, और बेहतर है कि बड़ी स्क्रीन पे पढ़ें। इस पर पढ़ेंगे आप कहेंगे यार मैं ऐसा मुश्किल हो रही है मुझे पढ़ने में। आप एक पेज पढ़ेंगे आप थक जाएंगे, आप उस पर पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास प्रिंटर है प्रिंट आउट कर लें। ठीक है, तो वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि वॉट एवर डिफ़िकल्ट वर्ड्स डेट यू मे कम अक्रॉस, आप उनकी मीनिंग गूगल करेंगे और आप उनका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। आप उनका स्क्रीनशॉट करेंगे और फिर आप उनकी एक गूगल शीट बनाएंगे उन वर्ड्स की। एक चीज़ होती है एक्सेल शीट, एक होती है गूगल शीट। ठीक है, उन गूगल शीट में आपने वर्ड्स भी लिखना है और वो मीनिंग भी फिर लिखना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह कुछ बच्चे करते हैं। अगर आप ये देखें तो लेफ़्ट कॉलम में खाली सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, राइट कॉलम में मीनिंग है। वर्ड मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग, इस तरह। और ये सारी बेटा ये है नॉन ट्यूटर प्लस वोकैबलरी। ये जो बच्चे जो एडिशनली याद कर रहे होते हैं, क्योंकि आप बेटा जान का वेट करिए प्लीज़।
तो बेटा आपको स्क्रीनशॉट करने हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगे, उनको गूगल शीट में लिखना है, उनकी मीनिंग भी लिखनी है। लेकिन इससे एक तो ये कि आपकी वोकैबुलरी एक जगह रहेगी, आप फिर वो आप गूगल शीट आप वो मेरे साथ शेयर कर देंगे। कैसे शेयर करेंगे वो मैं आपको प्रॉपर भी बता दूंगा अभी 1-2 दिन में, जब आप थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे इसको। अच्छा, ये अब पॉइंट है कि हम ये एक्सरसाइज करते क्यों हैं। देखें बेटा, फॉर IBS टेस्ट ना 2 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, या कराची में इस तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी वोकैबुलरी शीट्स जो है ना वो डिट्टो एग्जैक्टली सेम है। तो जब बच्चे एडमिशन लेने आए, दे वर बोथ हियर, और जैसे जितने भी बच्चे हैं वो इस लेवल पे हैं, उन्होंने सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर ली और वो सारे इधर आ गए। तो डजंट मेक एनी डिफरेंस ना, you're this good, now you're all this good, so technically again कोई फ़ायदा नहीं हुआ। For IBS test you have to be better than others and you have to know more than others do to clear the test. If you're only as good as others, so फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि जब आप आए थे आपको कुछ नहीं आता था, और अब आपको उतना ही आता है जितना बाकियों को आता है, तो फ़ायदा थोड़ी, you're not meeting the cutoff। जितने लोग 216 या 216 से ऊपर थे, they knew more than others, ठीक है। उनको वोकैबुलरी पे एज था, या किसी को मैथ्स में एज था, या और भी लोग जो 240s 248 252 वाली रेंज में 260 वाली रेंज में, उनको कई चीज़ों पे एज था जो टेस्ट में आ रही थी, ठीक है। अब आप कहें सर हाउ मेनी वर्ड्स आर इनफ, आई डोंट नो, लाइक दिस नो स्पेसिफिक काउंट। कई बच्चे 4000 5000 वर्ड्स याद करके जाते हैं जस्ट टू बी वेरी सेफ, एंड समहाउ उन 4000 5000 वर्ड्स में से, अब आप बच्चे कह रहे होते सर मैं 4000 याद कर, आप बोल रहे हैं मैं 1000 याद कर लूँ। बेटा देखो 4000 में से भी अगर IB के टेस्ट में लेट्स से 20 वर्ड्स आ जाए किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, तो हाउ वुड यू नो कि IB वो 20 वर्ड्स इन 4000 में से ही देगा? वर्ड्स तो बहुत हैं भाई, मैं डिक्शनरी याद नहीं करा रहा तो मैं कह रहा हूँ 4000 वर्ड्स। एक 4000 एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी आपको 4000 बहुत लग रहे होंगे, लेकिन जब आप कर चुके होंगे एंड लुकिंग बैक एट दिस इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड। कुछ बच्चे लेट भी ज्वाइन करते हैं तो इसलिए तो आप भी जब कभी दोबारा ये बात हमारी होगी तो आप कहेंगे यार वाकई में मैंने इतना कर लिया। और इनिशियली फर्स्ट क्लास सबकी ऐसी होती है, सब कह रहे थे वाकई में रियली। तो पॉइंट इस बेटा, सिर्फ मैं इतनी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको उतना ही आता है जितना मेजॉरिटी को आता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू डू मोर देन अदर्स। लेकिन 4000 वर्ड्स में से भी वी डोंट नो कि 20 के 24000 में से आएंगे। हो सकता है उसमें से तुम्हारे को 12 आ गए, 8 तो आते ही नहीं है, बेशक तुमने 4000 करे थे। अब लेकिन तुम्हें ये पता है कि 12 में यू आर एब्सोल्युटली श्योर, ठीक है। लेकिन जिसने 4000 में से भी 1000 करे थे उसको कितने आते होंगे? इमेजिन, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो आपको अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ करनी है पास होने की। जिसने 1000 करे थे उसको तो 20 में से 3 आते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं मेक श्योर करने के लिए कि IB अगर करंट मोस्ट कॉमन वर्ड्स दे रहा होता है हम वो भी कर रहे होते हैं, वो ट्यूटर प्लस वाली वोकैबुलरी। IB अगर करंट इवेंट्स वाली वोकैबुलरी दे रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं कहीं पे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, रिसेशन आया हुआ है, IB वो वाली टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज़ करने वाला है या करने लगा है या वो दे रहा है मैगजीन्स की, तो हम वो भी पढ़ रहे हैं। तो हम नॉन ट्यूटर प्लस वोकैबुलरी में उस जगह पे काम कर रहे होते हैं। ट्यूटर प्लस वोकैबुलरी इज़ द करंट वोकैबुलरी, और सॉरी ट्यूटर प्लस वोकैबुलरी इज़ द जनरल वोकैबुलरी that we use in our everyday life। आप कहेंगे सर ये वर्ड तो मैंने तो कभी एवरीडे लाइफ में यूज़ नहीं करे। एवरीडे लाइफ का मतलब ये है कि द वर्ड्स जो कि बहुत कॉमन हैं, जो कि यू नो जो फॉर एवर सॉर्ट ऑफ वर्ड्स हैं, जो कि हमेशा ही गोल्डन वर्ड्स, आप गोल्डन इन द सेंस के वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। आप लोग शायद यूज़ ना करते हो या मैं शायद यूज़ ना करता हूँ। पॉइंट है कि वो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स, कुछ वोकैबुलरी ऐसी होती है जो कि बहुत स्पेसिफिकली कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं तो यूज़ हो रहे होते हैं। कोविड की वजह से इनॉक्यूलेट फॉर एग्जांपल, ठीक है। इनॉक्यूलेट अब वो वैक्सीन से रिलेटेड है वर्ड। जब वैक्सीनेशन सबको हो जाएगी, कोविड ख़त्म हो गया, तो इनॉक्यूलेट का वर्ड इतना यूज़ नहीं होगा। शायद कहीं पे किसी कोई
पेंडेमिक तो नहीं है, अगर कहीं पे कोई एपिडेमिक है किसी स्पेसिफिक से एरिया में, तो वहाँ पे लोगों को किसी चीज़ की वैक्सीन लगनी चाहिए, चाहे वो मलेरिया है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर वो वर्ड यूज़ हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, डिपेंड करता है कि करंटली क्या चल रहा है। लेकिन आई वी ने इनॉक्यूलेट अगर दे दिया, वोकैबुलरी की बुक में नहीं है, तो आपको कहाँ से आता होगा? आपको नॉन टीट प्लस वोकैबुलरी से आता होगा आपको। पिछले मार्क्स पहले हमें क्वारंटाइन भी नहीं पता था, तो हमें पता है एक साल से क्या चीज़? द वर्ड क्वारंटाइन हमें नहीं पता था। क्वारंटीन, या ऑफ कोर्स, लेकिन अब एक साल से ऑफ कोर्स, कॉमन हो गया। जी सही कह रही हैं। अच्छा बेटा, आपका जो भी नाम है, आपका जो क्लास का ग्रुप होगा, आपको इस नंबर पे ये मैसेज कर देना है, आपका जो भी नाम है, आपको फिर उस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपका वैसे वीक डे, ठीक है, ये परसों का थोड़ा सा लिखा हुआ है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, टेक्स्ट मैसेज नहीं, कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। ये सिर्फ इसीलिए यूज़ हो रहा होता है ट्यूटर प्लस का ये वाला नंबर। एडमिशन्स के लिए मैं इसका एक उधर का एक अलग नंबर है एडमिशन्स का, ये वो नंबर है जो कि आप मेरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करेंगे। पहले इस पे आप कर दें ताकि आपका एक ग्रुप जो बन जाएगा व्हाट्सएप का, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। बेटा ये प्लीज़ आपको ये कॉपी करना था, प्लीज़ ये कॉपी कर लें। फिर सही सर्कल्स। बेटा मैं अभी समझा देता हूँ आपको। जी बेटा, थोड़ा सा और ऊपर एक सेकंड। दिस बेटा, आप मुझे ठीक है। तो सही से मुझे सर कर ठीक है बेटा। बेटे ये आपने पूछे सर्कल, स्क्वायर, हाई फ्रिक्वेंसी, नॉन एनसीएनएस का मतलब है नॉन सर्कल, नॉन स्क्वायर। ये कुछ वोकैबुलरी की जो लिस्ट है हमारे पास वोकैबुलरी वाली बुक पे, उनकी नेम्स हैं, ठीक है। बेटे कॉपी कर लिया? बेटा ये प्लीज़ आप कॉपी कर लें, आपका इंग्लिश का सिलेबस है।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. But for the next 4 months, we're going to be talking about how to pass this test. देखिए 3 ज़्यादा रीजंस हैं जिनकी वजह से इस टेस्ट को बच्चे ज़्यादा फील करते हैं. They take the vocabulary very casually, the entire vocabulary section, क्योंकि बच्चों को मुश्किल होती है इसमें. मुश्किल इस तरह होती है कि वो एक रॉन्ग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होते हैं vocabulary के लिए, और फिर ऑफ कोर्स उनको मुश्किल होती है. Point 2 is कि don't put in efforts to improve your maths. मतलब आप whatever current level of mathematics you have, that's fine. लेकिन it can be improved. बच्चे उसको proportionately improve ही नहीं करना चाहते या नहीं करते. तो ये बड़ा important है ये realize करना. बच्चों को लगता है कि यार this is where we stand and possibly this is where we will continue to stand, without realizing the fact कि they can actually improve. लेकिन उसमें प्रैक्टिस चाहिए. आप कोई डिश भी पहली बार पकाते हैं उसमें परफेक्शन नहीं होती है, बट आप अगेन ट्राई करते हैं. आप बेकिंग कर लें, आप पहली मरतबा इतना अच्छा नहीं होता, आप कहते हैं अच्छा ये चीज़ नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इसको थोड़ा हीट ज़्यादा कर दिया, मैं उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दूंगा, ये ज़्यादा करूँगा. बहुत सारी चीज़ें आप केयरफुली कर रहे होते हैं. तो मैथ्स में भी ऐसी होता है बेटा, आपको यू ओनली गेट बेटर विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. दैट्स इट. रीडिंग बहुत सिग्निफिकेंट है. अगर आप में से किसी ने भी राउंड 1 दिया हो तो आपने देखा था कि रीडिंग आपके पास आई थी, वो अभी भी आ सकती है आपके पास. ठीक है, तो आप रीडिंग अगर आप नहीं करें, क्योंकि उसमें आपके पास आती है एक एलिवेटेड रीडिंग, एक थोड़ी सी मुश्किल रीडिंग होती है. वो रीडिंग अगर आपने नहीं करी भी या वो नहीं करते, रीडिंग के ऊपर एम्फेसाइज जो है कराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं वो इधर ग्रेड्स के पीछे भाग रहे हैं या परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं. जो जितने भी बच्चे हैं ना, मतलब बच्चे टीचर्स के नोट्स को रेफ़र कर रहे हैं, वो तो अकेडमिक रीडिंग भी नहीं कर रहे. उनसे पूछें ए लेवल्स के बच्चे ए लेवल्स की बुक्स को नहीं खोल रहे, इंटरमीडिएट के बच्चे इंटरमीडिएट की बुक्स को नहीं खोल रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं टीचर्स के नोट्स ही बहुत हैं. रीडिंग की आदत ही नहीं है बच्चों को. मतलब आप किसी को यहाँ पे टैग भी कर दें किसी फेसबुक की पोस्ट में, तो दोस्त उसका बोलते हैं भाई आप मुझे समराइज़ करके दे दो, मैं नहीं पढ़ रहा इतना. उनको रीडिंग करनी ही नहीं लोगों को. अब IB जो है ना, 180 डिग्री डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं IB की. IB चाह रहा नहीं आप आए, अगर आप आ रहे हैं मेरे पास तो आपका ये लेवल ऑफ रीडिंग होना चाहिए और ये लेवल ऑफ मैथमेटिक्स होना चाहिए, क्योंकि IB ने आपको ये चीज़ सिखानी नहीं है. IB ने आपको स्पीच कम्युनिकेशन सिखानी है, IB ने आपको बताना है, आपको मार्केटिंग पढ़ानी है, आपको सेल्स पढ़ानी है, आपको लीडरशिप पढ़ानी है. IB ने बहुत सारी दूसरी चीज़ें सिखानी है. अब IB कह रहे हैं इंग्लिश और मैथ्स भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो यार तुम पहले से क्या सीख रहे हैं. तो कई चीज़ें जो IB एक्सपेक्ट करे कि आपको पहले से आनी चाहिए. आपके पास एक प्रपोजल आ गया, फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा, जो वोकैबुलरी उसमें यूज़ हुई हुई है, आपको टेंडर आपने देना है, आपको पता ही नहीं कि यार इसमें मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा. तो सूनर और लेटर अगर आपको लाइफ में अच्छा करना है तो आपको ये चीज़ें करनी तो हैं. अब डिसाइड कर लें कि आप इसको कितना डेफर कर सकते हैं. आपको करना है ज़रूर अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है. अगर अनसक्सेसफुल रहना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल रहना है तो आपको चीज़ें करनी है बेटा. ठीक है, अब आप कहें सर मुझे तो अपना काम कोई करना है, मुझे बेकिंग करनी है, उसमें भी अगर तुम्हें एक लेवल पे जाना है, तुम्हें बाय द स्काई बनना है नेक्स्ट वाला, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. तुम विल बी मीटिंग सो मेनी पीपल, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें होंगी बिजनेस में जो कि तुम्हें आनी चाहिए, तब जाके तुम उस लेवल पे जा सकते हो बेटा. ठीक है, तो ये तो बेसिक्स ही चीज़ें हैं. ठीक है, ये बाकी में ये उस लेवल पे जब तुम जाओगे तो ये बेसिक्स बन जाएंगी. लोगों से बात करना, देखना, प्रपोजल्स पढ़ना, तुम्हें कोई और चीज़ चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम हर चीज़ के लिए डिक्शनरी की ऐप थोड़ी खोलोगे. तो ये तो इतना तो होना ही चाहिए तुम्हें, इतना अच्छा. ठीक है, ये तो समझो बेयर मिनिमम है, तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे. बेटा आपकी जो क्लास की टाइमिंग्स हैं वो हैं मंडे से थर्सडे,
ये आपके बेटा बैच की लाइनिंग्स हैं, प्लीज़ आप इसको से कॉपी कर लें। सर मेरा ना वीकेंड की बैच है 9-10 AM to 2 PM, सैटरडे एंड संडे। और मुझे कुछ आपसे होमवर्क से रिलेटेड आप पूछ लीजिएगा। अभी पूछूँ ना? नहीं, क्लास के बाद बेटा। बेटा दोबारा से एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूं। देखें, अभी तक आपके पूरे एजुकेशनल करियर के अंदर ना आप बायर हैं। अभी तक आपके इंटरमीडिएट में बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई, आपके ए लेवल्स में बहुत अच्छे ग्रेड्स आ गए, आपके 10 स्टार्स आ गए। आप डिसाइड करें कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊं, बिकॉज यू आर द बायर, यू आर द वन हु इज़ पेइंग, सो यू गेट टू डिसाइड व्हाट टू डू। मतलब आप बायर हैं, आपकी मर्ज़ी है, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। जो सेलर होता है बेटा वो कॉलेज है। अब कॉलेज जो है आपको वो कॉलेज चार्ज कर रहा है, तो कॉलेज जो है वो आपके पास सेलर है, उसके इतने नखरे नहीं है, बायर के नखरे होते हैं। दैट्स इट। प्रोफेशनल लाइफ में बेटा द सिनेरियो इज़ अ बिट रिवर्स। आप एम्प्लॉई बन जाते हैं, एम्प्लॉयर कोई और होता है, ठीक है। एम्प्लॉयर इज़ द वन हु इज़ पेइंग, एम्प्लॉई इज़ द वन हु इज़ गेटिंग पेड। जब आप बायर थे यू वर पेइंग, आपके नखरे थे, ऑफ कोर्स आपके नखरे थे ना। यू वांटेड यू डिसाइडेड कि भाई मुझे कौन से कॉलेज में पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स ही इतने अच्छे आए हैं, तुम्हारी परसेंटेज ही इतनी अच्छी आई है कि यू गॉट टू मेनी चॉइसेस। तुम्हारे ऊपर है तुम कौन से स्कूल में कॉलेज में जाओगे, कौन से हाई स्कूल जाओगे। एम्प्लॉयर भी यही कह रहा होता है, एम्प्लॉयर की भी यही मैंटेलिटी होती है कि भाई आई एम द वन हुज़ पेइंग। उसके पास भी बहुत सारी CVs आ रही हैं, ठीक है। तो उस कंपटीशन में अगर ऊपर आना है तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी जाना होता है, ठीक है। तो IB में जाके अगर मैं आप में से, क्योंकि अभी आप लोग थोड़े से बच्चे काउंसिल भी नहीं ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ा सा IB की भी बात कर रहा हूँ ताकि आप कंट्रास्ट भी कर सकें। अब देखिए, जितनी पहले मल्टीनेशनल्स होंगी वो ज़्यादा टैलेंट हंट जब करेंगी वो पहले जाएंगी लम्स और IBA। बच्चे भी अपने 7th और 8th सेमेस्टर में ही होते हैं और उनकी कैंपस ड्राइव्स कर लेती हैं। कैंपस ड्राइव्स का मतलब है कि वो वहाँ जाएंगी और वो वहाँ पे ही जो है ऑन कैंपस बच्चों के टेस्ट होते हैं, ऐसे टेस्ट होते हैं, इंग्लिश और मैथ्स होती है उसमें भी, और वो देखते हैं कि हाउ गुड देयर परफॉर्मिंग। कभी कभी आपका ऑन कैंपस इंटरव्यू भी हो जाएगा और फिर आपके और इंटरव्यूज़ होते हैं और आप हायर्ड हो जाते हैं। तो यूर स्टिल इन योर 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर एंड यू ऑलरेडी गॉट अ वेल पेइंग जॉब। So you, unlike many other people, you don't have to wait and then like graduate and then wait and then send out your CVs and then get a job. So ये बड़ा एक डिस्पैरिटी है। आप डिस्पैरिटी इन द सेंस के एक जगह आप देखें आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है जॉब के लिए, आप अप्लाई करे जा रहे हैं, एक जगह अभी आपने ग्रेजुएट ही होना है और आपके पास पहली जॉब। और इस तरह ये नहीं कि IB के हर बच्चे के साथ ही हो जाता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन पॉइंट इस कि अगर आप IB जाके भी अच्छा कर रहे हैं तो आपके पास चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, IB जाके भी अगर आप मीडियोकर ही रहे, आपने अपने आप को इस तरह इंगेज कर लिया कि आप IB में 7 to 8 सोसाइटीज़ का पार्ट बने हुए हैं और आप एकेडमिक से ज़्यादा सोसाइटीज़ की हेल्प करने में लगे हुए हैं, आपका पूरा टाइम वहाँ पे जा रहा है, इसकी वजह से आपने अपनी GP भी ख़राब कर दी है, तो फिर अच्छा नहीं है, फ़ायदा नहीं है कुछ, इसका इतना कोई सच फ़ायदा नहीं है। IB में भी जाके आपको मीडियोकर नहीं बनना होता, आपको वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करना होता है ताकि आपकी एक अच्छी जॉब लगे। जब आपकी एक अच्छी जॉब लगती है, आप वहाँ पे अच्छा कर रहे होते हैं, लेट्स से आपकी जॉब यूनिलीवर में लग गई, तो यूनिलीवर में अगर वो देखते हैं कि यार आप 2 साल में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपको इंटरनेशनली कहीं यूनिलीवर के हेडक्वार्टर लंदन में भेज देते हैं, फिर वहाँ आपको फर्दर 3-4 साल वहाँ आपको ट्रेन करते हैं और फिर वो आपको कहते हैं यार आप जाएँ, आप कुछ और बड़ा सेगमेंट संभालें। लेट्स से वो आपको अबू धाबी में वो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, वो कहेंगे अबू धाबी में पूरा वॉल्स का सेगमेंट अब आपने देखना है, पूरा पेंटीन का सेगमेंट आपने देखना है वॉल्स अबू धाबी के अंदर, तो आप पूरा उसको लीड कर रहे होते हैं क्योंकि आपके अंदर टैलेंट भी होता है, आपने सीखा हुआ भी इस तरीके से होता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप IB जाएँ और आप बिल्कुल मीडियोकर रहें, आपकी कोई इतनी अच्छी सैलरी नहीं है, बस आपको कि IB में भी आप मीडियोकर ही रहे, बस आप IB आ गए और आपने कहा बस दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ। आपके ऊपर है कि आपने IB को स्टेपिंग स्टोन बनाना है या अल्टीमेट गोल बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप तुम IB चले गए तो लाइफ इज़ ऑल सेट, वहाँ जाके भी बड़ी मेहनत करनी है। तो बेटा ये कुछ बातें हैं
इस जो अभी तक हमने करा इसमें अगर आपको जो आज डिस्कस करा इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो प्लीज़ डू आस्क। सर बेस्ट 3 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान कराची में कौन सी है? फॉर बिजनेस स्कूल्स बेटा इट्स IB, IB CPM is the best। बाकी सारी ग्रेड क्लियर कर बेहतर है आप IB जाओ बेटा, बेहतर आप प्रोविजन माइंड में बना लोगे ना कि मुझे कहीं और जाना है तो आप बहुत जल्दी गिव अप करते हो, ठीक है। सोचो कि IB जाना है और हो जाएगा, दैट्स इट। और सर ये ऑनलाइन क्लासेस हम कैसे ले सकते हैं? ऑनलाइन क्लासेस आप जूम पे ले सकते हैं बेटा। नहीं आई क्लियर कोर्स सेंटर। जी जी आप मांग लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप आ सकते हैं, आप कहाँ करीब से आती हैं, कहाँ से आते हैं?